Now we have been discussing previously about the various different algorithms about line. Okay, and since today the attendance is short, let me revisit and revise few basic things so that we can all learn something, right? So now we have done the D algorithm, we have done the other algorithms as well. We have not done Bressenham's algorithm in this class, right? Right. So let me just revise the DDA algorithm and how it is supposed to work. Okay. Now DDA algorithm is basically simple algorithm that gets considered an incremental. By incremental, it means that it takes the first point and then it determines the next point based on the values of first point. Okay. DDA algorithm mein, it takes the first point and then calculates the next point. Now again, this is DDA line algorithm. असल मसला ये है कि मैं लाइन को कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से बनाऊं. उसके हमने कहा कि बहुत सारे मुख्तलिफ अलगोरिथम्स हैं. तो जब हम हर अलगोरिथम डिस्कस करते हैं, हर अलगोरिथम की अपना एक तरीक़ेकार है, अपना एक तर्ज अमल है जिसके तहत वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि अगर पहला पिक्सल है गिवन, तो नेक्स्ट पिक्सल की लोकेशन हमें कैसे पता चले, उसके बाद की पिक्सल की लोकेशन हमें किस तरीके से पता चले. ठीक है. So what we do is we use the same given equations. We take the input value x naught is equal to x naught y naught and x1 y1. These becomes our starting point. Using these starting points, we determine the value of m. m हमारे पास slope के लिए define किया जाता है. ठीक है. m की जो value हम determine करते हैं वो y1 minus y naught upon x1 minus x naught. ठीक है. Whereas y1 जो है it represents the second value or end point and y naught represents the initial value or the first starting point. ठीक है. और इसको हम डेल्टा y और डेल्टा x कह के भी रिफर कर रहे होते हैं. Hence m can also be represented as delta y upon delta x. Then comes into the question delta y is equal to m delta x. इस इक्वेशन को हमने अल्टर किया, उसके बाद डेल्टा x is equal to 1 upon m delta y. ठीक है. यही चीज़ जो थी उसको हमने रीअल्टर किया. In this case मैं डेल्टा y को यहाँ पे ले आया और m को यहाँ पे ले आया. तो जो चीज़ पहले डिवाइड हो रही थी मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई डिवाइड. तो जस्ट रीऑर्डर के इक्वेशंस को, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई. ठीक है. तो डेल्टा x को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो m डेल्टा x हो गया इज इक्वल टू y. तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी. देन इसी इक्वेशन को अगर डेल्टा x को मुझे यहाँ पे लाना है तो डेल्टा y यहाँ पर आ गया. ठीक है. तो 1 upon m इज इक्वल टू डेल्टा y. तो वही इक्वेशंस को हमने रीअरेंज किया जस्ट टू ऑब्टेन दिस वैल्यूज. Then we say that in order to solve the DDA algorithm, we need basic equations. Now let me just go directly to the what we call the solution. Okay. This is the derivation, and derivation drives and determines the value. Let me just go directly to the solution. The solution is given in terms of the algorithm. Okay. Algorithm ये कहता है that get to the input of two endpoints x naught and y naught. सबसे पहला step. Second step, determine the value of delta x and delta y. This is basically difference in x-axis, difference in y-axis. dx, dy. dx is equal to x1 minus x naught. dy is equal to y1 minus y naught. This is the initial values or difference values, sorry. This is the difference values that we use to calculate the difference between these 2 points. Then we evaluate the condition. If the dx is greater than dy, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट है तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट पिक्सल पे जाना है. तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि नेक्स्ट पिक्सल कौन सा होना चाहिए, कितने स्टेप के बाद होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप्स की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ dx इफ dx इज ग्रेटर देन dy. जो यहाँ पे वैल्यूज आपने निकाले थे, तो आपने क्या करना है, स्टेप्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ dx. अब एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने पहले बताया इज जस्ट अ फंक्शन इज यूज फॉर अ बेटर कोडिंग सिस्टम्स. आप ना भी यूज करो फिलहाल इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, but this is given in terms of a better coding standard where you make sure all your values are absolute values, ताकि एरर आने के चांसेस हमारे पास, लॉजिकल एरर आने के चांसेस हमारे पास कम से कम रहे. So we say steps is equal to absolute dx or else s step is equal to y. मतलब अगर dx की वैल्यू dy से बड़ी आ रही है हमारे पास, in this case if dx is greater than dy means dx की वैल्यू dy से बड़ी हो गई, तो आप स्टेप्स को dx से बराबर कर दो. मतलब जो कदम आपने चलना है अब वो x के डिफरेंस के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. अगर dx की वैल्यू छोटी है तो स्टेप की वैल्यू y के बराबर कर दो. मतलब अब जो वैल्यू आप स्टेप करोगे वो y की वैल्यू के हिसाब से, वो y के डिफरेंस के हिसाब से आप वैल्यू करोगे. तो सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू डिटरमाइन की,
उसकी कंपैरिजन की कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। फिर हमने कहा इंक्रीमेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स आई डिटरमाइन कि भाई मुझे इंक्रीमेंट कितने लेने हैं, कितना इंक्रीमेंट करना है। उसके लिए dx डिवाइडेड बाय स्टेप्स अपॉन x इंक्रीमेंट इज इक्वल टू x इंक्रीमेंट, और y में कितना इंक्रीमेंट हो वो हमने कहा dy डिवाइडेड बाय स्टेप्स। अगेन स्टेप्स क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, कदम कितने उठाने हैं मुझे उस जगह तक पहुंचने में, और कितने बड़े बड़े कदम उठाऊं वो हमने इंक्रीमेंट से डिटरमाइन किया। ठीक है, स्टेप्स विल गिव अस दिस वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया था। दिस स्टेप्स विल टेल अस दैट हाउ मेनी स्टेप्स आई नीड टू टेक टू रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इंक्रीमेंट बेसिकली विल टेल अस दैट हाउ मच इंक्रीमेंट आई नीड टू डू in order to take those steps and to reach that particular destination. Hence what I say is if I determine this, then for loop less than equal to steps, क्योंकि हमने पहले कहा कि स्टेप से बताएगा कितने कदम हमें चलना है। उसके बाद इंटीजर y is equal to 0, y is equal to plus plus, v is equal to plus plus, x is equal to x plus increment, जितना x में इंक्रीमेंट हमने किया था ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है उतना x में इंक्रीमेंट करो, y is equal to y में उतना इंक्रीमेंट करो, फुल पिक्सल करो। वेरी सिंपल सॉल्यूशन। इसी को फिर हमने सॉल्व करने की कोशिश की। Then in order to solve the same problem, we said, for example, draw a line using a DD algorithm for the points between 2, 5 and 6, 9. Now we have given 2 points, 2, 5 and 6, 9. So this becomes the starting point, this becomes the ending point. We say determine the values of pixel and plot the graph. अब वैल्यूज कैसे निकालनी है, x0 y0 हमारे पास 2 and 5 हो गए, the starting 2 points, x1 y1 हमारे पास ending 2 points हो गए, दोनों यहाँ पे गिवन है। तो ये तो पहली चीज यहाँ पे आ गई। स्टेप 2 में हमने कहा डिफरेंस निकालो dx and dy का, dx x1 minus x0, dy which is 6 minus 2 is equal to 4, hence dx 4 आ गया, dy y1 minus y0 is equal to 9 minus 5 is equal to 4, यहाँ से वैल्यूज पुट की, सिंपल माइनस किया, 4 आ गया। दोनों का आंसर क्या आ गया 4। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सी कंडीशन बड़ी थी, दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों बराबर है, तो आई गो बैक टू माय एल्गोरिथम। माय एल्गोरिथम सेज दैट इफ dx is greater than dy, there is no equal to sign here. This means कि if I evaluate, if I put this values in here, dx भी 4 था, dy भी 4, तो अब यहाँ पे कौन से स्टेप कैलकुलेट होगा, dy, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज dx करंटली इज इक्वल टू dy, और कंडीशन में सिर्फ ग्रेटर देन चेक हो रहा है, कंडीशन में इक्वल टू चेक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर उससे बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ dy, एंड इन दिस केस वी से कि मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स जो होगा इज इक्वल टू dy, वाई बिकॉज 4 जो है वो बराबर हो गया 4 के या बड़ा है dy, ठीक है। Steps is equal to dy, in other words steps is equal to 4. Then step 4, x में इंक्रीमेंट कितना करूं, तो dx upon steps, y में इंक्रीमेंट कितना करूं, dy upon steps। इक्वेशन में गिवन था dx की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, y इंक्रीमेंट 4 upon 4, dy भी 4 था और steps भी 4 था, इक्वल 1, मींस दोनों की इनिशियल इंक्रीमेंट आ गई 1 1 1। अब ये चीज मैंने सिंपली लूप में रखी, x प्लस इंक्रीमेंट y प्लस इंक्रीमेंट, x की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 3, नेक्स्ट 5 प्लस 1 5 प्लस 6, ठीक है। इसके बाद 3 में प्लस 1 किया 4, 4 में प्लस 1 किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में प्लस 1 किया 7, 7 में प्लस 1 किया 8, 8 में प्लस 1 किया 9। सो यू कैन सी दिस इनिशियल 2 वैल्यूज 2 and 5 जो आई थी वही हमने एज इट इज पुट की, और 6 and 5 9 जो था वो एंडिंग 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ तक बात क्लियर हुई, चलो ठीक है। So now let me go to the Bresson-Hames algorithm.